Good afternoon. Welcome to Regional Distance Learning Clinical Seminar Series. Today's topic is Step Up Adherence Counseling and speaker Dr. Ravinder Kaursich Deva. Dr. Ravinder is currently working as a Senior Medical Officer at COERT-PJ Chandigarh. She was associated with WHO for strengthening of routine immunization and surveillance for vaccine preventable diseases. She has published more than 26 papers in international and national indexed scientific journals of high impact and has more than 705 citations. We welcome Dr. Ravinder to start the session. Hello, good afternoon, everyone. Dr. Ravinder will start the session within 5 to 10 minutes. Okay, Shweta? Okay. Participants are requested to kindly bear with us. एक्चुअली एक पेशेंट आ गया, थोड़ा क्रिटिकल है इसीलिए थोड़ा हेलो जी सोनिया. हाँ, we welcome Dr. Ravinder to start the session. Good afternoon, everyone. Apologies for some delay. So to begin the session, in this session, we'll be discussing about the step-up adherence counseling. So by the end of this session, I'll be explaining you कि अगर patient का ART शुरू हो चुका हुआ है तो उसको monitoring कैसे करना है, adherence monitoring में क्या क्या tools हमें use करने हैं और हमें कैसे patient का step-up adherence करना है if adherence is failing, and how are we going to manage अगर patient का viral load is unsuppressed. And मैं आपको थोड़ा सा U equal to U के बारे में भी इस सेशन में बताऊंगी. So सबसे पहले I just want to let you know that why adherence is so important. पहले तो हमें adherence और compliance का difference पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या difference है. So how is adherence different from compliance? If any one of you know, please write up in the chat section so that we can simultaneously have this thing, knowing that what all is being known to you, as what is the difference in compliance and adherence. You can write your responses in the chat. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Right. So I could not see any of the response in the chat section. So just to tell the participant, adherence is that taking medications and following the healthy lifestyle which has been advised to the person in agreement with the recommendation of the provider. So provider has told some instructions to the patient and has given medications, and these instructions and medications are being followed by the patient as informed as by the healthcare providers. And compliance is that it's an extent to which patient behavior matches the prescriber advice, like how much he can follow the instructions which has been given to him. So compliance actually implies patient's obedience to physician, actually, right? So actually adherence is so important in the case of in HIV context. HIV adherence is very important because we all know that अगर patient का poor adherence है while on antiretroviral therapy, patient can have virological failure, and which can be the reason for the treatment failure in case of the HIV scenario. और पुअर एडहेरेंस ना केवल पेशेंट का इमीडिएट हेल्थ को इफेक्ट करता है बट ऑल्सो इफेक्ट्स द
but it can also produce permanent treatment resistance in the patient. So that is why we emphasize on adherence in each visit. हम हर visit पे patient को counselor के पास visit करवाते हैं, so that उसको उसका जो भी treatment के बारे में उसको बता रहे हैं, जो उसको treatment लेना है वो उसको follow कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके क्या reasons हैं. So इन सब का assessment और treatment adherence को comply करना is very very important. और HIV के केस में जब हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, दैट इज़ अ फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन. सो उससे फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन का बेनिफिट ये होता है कि उससे जो ड्रग कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर नंबर ऑफ पिल ज़्यादा हैं या नंबर ऑफ टैबलेट ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, तो पेशेंट उसको कंप्लाई नहीं कर पाता है. तो उसको भी हमने विद द फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन ये मिनिमाइज है. सो क्या फैक्टर्स रहते हैं पेशेंट ट्रीटमेंट को कंप्लाई नहीं कर पाते हैं या एडहेयर नहीं कर पाते हैं, उनका असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट while on maintaining the therapy in HIV patients. So so to monitor the response to therapy, certain clinical and immunological improvement if it is there or not, virological suppression है कि नहीं है, और पेशेंट का इम्प्रूवमेंट क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं आया, इसका असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है. तो इनका असेसमेंट के लिए कि पेशेंट का क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, ईच विजिट पे पेशेंट्स का वेट रिकॉर्ड होता है, ट्रीटमेंट स्टेजिंग करी जाती है. वायरल सप्रेशन देखने के लिए वायरोलॉजिकल मॉनिटरिंग जो होती है, वायरल लोड का मॉनिटरिंग जो होता है, एज पर रिकमेंडेशंस वो रेगुलर किया जाता है. एंड ट्रीटमेंट एडहेरेंस चेक किया जाता है with the adherence calculation formula, pill calculation formula. And इसके अलावा CD4 monitoring as per the recommendations करते हैं. तो this is इन सब पैरामीटर्स से we get to know about the response to therapy. तो जब जब पेशेंट का इनिशियल ट्रीटमेंट शुरू होता है, इनिशियल 6 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल. टू सर्टन टाइम्स क्या होता है कि पेशेंट का जो बेसलाइन CD4 है, इट इज़ वेरी वेरी लो. एंड वंस जब मेडिकेशन शुरू होती हैं तो इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में कुछ कुछ इन्फेक्शंस निकल के आती हैं, जो कि विच इज़ नॉट एज, बिकॉज वो सब क्लिनिकल स्टेज में पहले होती हैं. जैसे ही ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स आना शुरू होता है, जैसे ही CD4 सेल्स में इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है, तो वो इन्फेक्शंस इमर्ज होके आती हैं. तो उनका असेसमेंट जो इनिशियल 6 मंथ्स में इट इज़ वेरी क्रूशियल रहता है. तो इसके अलावा हम पेशेंट्स के लिए इनिशियल जो 6 मंथ्स होते हैं, उनको कुछ मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं या फिर टॉक्सिसिटी हो रही होती है, उनका मॉनिटरिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. बिकॉज अगर हम इन चीज़ों को इनिशियल 6 मंथ्स में हमने प्रॉपरली असेस नहीं करा है और उनका एड्रेस नहीं करा है पेशेंट को, तो दिस कैन बी अ फैक्टर फॉर द पुअर ट्रीटमेंट एडहेरेंस. और वो हो सकता है पेशेंट बिकॉज ऑफ ऑल दोज इश्यूज कि उसको साइड इफेक्ट्स हो रहे थे या टॉक्सिसिटीज हो रही थी या कुछ सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस जो अब इन्फेक्शंस की फॉर्म में आ रही थी, तो उनको लगता है कि ये सब कुछ ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद ही हुआ है. तो दैट कुड बी द फैक्टर कि वो आप जो ART मेडिकेशन हैं वो लेना बंद कर दें या उनका इरेगुलर लेना शुरू कर दें. या कई बार उनको लगता है कि इन्फेक्शंस जो निकल के आ रही हैं या अभी ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद हो रही हैं, तो उन्हीं का ट्रीटमेंट लेना है, जो HIV मेडिकेशन है उस समय के लिए बंद कर दो. तो ऐसा वो मिस कैरी करते हैं. तो इसीलिए जो 6 मंथ्स इनिशियल 6 मंथ्स हैं वो बहुत क्रूशियल रहते हैं जब भी ART शुरू की जाती है. तो 4S एक सिम्टम असेसमेंट है, जो कि हम डिफरेंट पॉइंट टाइम पॉइंट्स पे हर पेशेंट का करते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे करते हैं, सो दैट कुछ भी अगर सिम्टम्स और साइंस पेशेंट को हैं वो मिस ना हो. और अगर ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स और साइंस हैं तो उनका टाइमली असेसमेंट हो और उनका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो. तो 4S सिम्टम असेसमेंट हमारे क्लिनिक जो केयर कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी करते हैं, काउंसलर्स भी करते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स भी करते हैं. सो उनका असेसमेंट हमें कुछ अंडरलाइंग इन्फेक्शंस के बारे में बताता है कि वो पेशेंट को इमर्ज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. ART के लिए ART का सक्सेस के लिए सस्टेन एडहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. 100% एडहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जो अगर पेशेंट ART मेडिकेशन टाइमली लेता है, रेगुलर लेता है, बिना मिस किए लेता है, तो उसी से वो
अपना वायरल लोड सप्रेशन अचीव कर सकता है। और अगर वायरल लोड सप्रेशन होगा तो दैट इज अ टाइम व्हेन पेशेंट कैन नॉट इवन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू द पार्टनर, और वो और इन्फेक्शंस को भी होने से बचाएगा। So maintaining a high level of adherence is important. So this not only suppress the viral replication, इससे CD4 सेल्स में भी इम्प्रूवमेंट शुरू होता है। पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। अगर पेशेंट पहले वर्किंग स्टेट में नहीं था, बेड रिडन था, एम्बुलेटरी था, सो एज मेडिकेशंस जब शुरू होती हैं उनका इफेक्ट आना शुरू होता है, CD4 सेल्स में इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है, वायरल सप्रेशन अचीव होता है, तो पेशेंट कम्स इनटू द वर्किंग स्टेट, और he comes back to the normal life slowly as he sustains the viral suppression. So अगर एडहेरेंस को मेंटेन करेगा तो उसमें जो ड्रग रेजिस्टेंस डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं वो भी मिनिमाइज होंगे। एंड ऑल्सो अगर वो अनडिटेक्टेबल स्टेट अचीव कर लेता है तो वो अनट्रांसमिटेबल भी के इक्विवेलेंट रहता है, तो पार्टनर को ट्रांसमिशन होने से भी बचा सकते हैं अगर वो एडहेरेंस 100% मेंटेन करेंगे। सो रेगुलर असेसमेंट ऑफ एडहेरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईच विजिट पे जो एडहेरेंस का असेसमेंट है बाय काउंसलर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक पिलर है ART सक्सेस के लिए फॉर इन ऑल द सेंटर्स। एंड ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ हैं जहाँ पर ये भी निकल के आया है रिजल्ट्स में कि अगर मोर देन 95% एडहेरेंस पेशेंट्स मेंटेन करते हैं तो दे कैन अचीव ऑप्टिमल वायरल लोड सप्रेशन। अगर वो इससे कम एडहेरेंस रहता है तो वायरल लॉजिकल फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सो इफ़ वील स्टार्ट सेइंग कि हाँ 95% तक एडहेरेंस आप मेंटेन कर लो, देयर इज़ अ विंडो ऑफ 4 to 5% कि आप मिस कर सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग मैसेज। सो आपको पेशेंट्स को जब भी काउंसिल करना है तो आपको उनको 100% एडहेरेंस के लिए ईच टाइम पे उनको काउंसिल करना है, सो दैट उनका एक भी सिंगल भी पिल मिस ना हो। उनको टाइमली मेडिसिन लेना है, इसके लिए हर विजिट पे काउंसिल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट ऑल मेंबर्स ऑफ जो हमारा ART टीम है, दे शुड एड्रेस द पोटेंशियल बैरियर्स टू अचीव एडहेरेंस, सो दैट पेशेंट को जो भी अगर कुछ भी बैरियर्स को लग रहे हैं जिनके कारण वो मेडिसिन नहीं खा पा रहे हैं, पिल बर्डन ज़्यादा है, डोजिंग का कुछ इशू आ रहा है, फ्रीक्वेंसी जो ट्रीटमेंट मेडिसिन का गैप्स में कुछ इशू आ रहा है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स में इशू आ रहे हैं, या उनको समटाइम्स क्या होता है कि उनको मेडिसिन प्रोवाइड ही लिमिटेड स्टॉक्स में होती हैं, तो इन सब चीज़ों का जो एड्रेस करना है, इट शुड बी एक्चुअली शुड बी डन बाय ईच मेंबर ऑफ द ART टीम। सो चेकलिस्ट में क्या आता है कि ताकि हमारा कुछ भी मिस ना हो, कि पेशेंट का एडहेरेंस जब हम चेक कर रहे होते हैं, जब काउंसलर्स चेक कर रहे होते हैं या डॉक्टर्स चेक कर रहे होते हैं, तो आपको हमेशा ये चीज़ का नोटिस में लाना है कि पेशेंट ऑन टाइम पिल पिक करने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं, उन्होंने लास्ट विजिट में कितनी डोजेस मिस करी हैं। तो सिंपल एक क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हो कि आपने लास्ट वीक में कितनी मेडिसिन मिस करी हैं, एंड देन आप यू कैन गो बैक टू द कि लास्ट वीक में कितनी मिस हुई, उसके उसके पिछले मंथ में पिछले वीक में कितनी मिस हुई, या पूरे मंथ में कितनी बार मिस करी हैं, और क्या कारण रहा उसने मिस करी हैं। क्या उसको मेडिसिन समझने में कुछ मुश्किल आया था, या कुछ और उसको इन्फेक्शन हो गया था तो उसने उस कारण से छोड़ दिया मेडिसिन लेना, और क्या उन्होंने जो उनके साथ कोई सपोजिटली कोई पेशेंट अगर कुछ और मेडिसिन लेने लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या कुछ उनको और ट्यूबरकुलोसिस है, कोई और इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी साथ में चल रहा है, तो उनको टाइमिंग या डोजेजेस में कुछ प्रॉब्लम आया या इस कारण मिस हो गया, या उनको उनको गलती लग गया कि वो मेडिसिन खा ली है या नहीं खाई है। सो इनका असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चेक लिस्ट हम अपने टेबल्स पे, काउंसलर्स अपने टेबल्स पे भी रख सकते हैं, सो दैट ये मिस ना हो कि ये असेसमेंट में हमने पूछा है कि नहीं पूछा। जैसे नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि ऑन टाइम पिल पिकअप है कि नहीं है, लास्ट विजिट में कितनी डोजेस मिस करी हैं, करेक्ट टाइम इंटरवल मेंटेन है कि नहीं है, कितना डिले हुआ, 1 आवर का डिले था, 2 आवर्स का डिले था, या मॉर्निंग का पिल अगर लेना था तो पेशेंट आफ्टरनून में ले रहा है, तो उसका उसका चेक लिस्ट में उसको उसको नोटिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कारण क्या रहा, और फर्दर अगर कुछ और मेडिकेशंस ले रहे हैं तो उनमें गैप कितना था, टाइमिंग्स क्या थे। कई बार पेशेंट सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं, तो उनका टाइमिंग गैप्स एडिक्वेटली मेंटेन था है कि नहीं है, ये सब का असेसमेंट आपकी चेकलिस्ट में आता है जब हम एडहेरेंस कैलकुलेशन करते हैं।
सो एडहेरेंस कैलकुलेशन का इट्स बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जो कि आप रूटीनली आप पेशेंट का असेसमेंट के टाइम पे यूज़ करते हो, जिसमें आता है कि टोटल नंबर ऑफ पिल्स पेशेंट हैज़ एक्चुअली टेकन over total number of pills which patient should have taken in that period. So अगर आपको TLD उसको 30 डेज का आपने इशू करा है और पेशेंट अगर आपके 2 दिन पहले 28 डे पे आया है, तो उसने कितनी एक्चुअली पिल उसमें उस टाइम तक ली होनी चाहिए थी, ओवर आपने कितनी उसको इशू करी इनटू 100, दैट विल गिव यू द एडहेरेंस इन परसेंटेज. सो इसका नीचे फॉर्मूलाज में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पिल्स गिवन टू द पेशेंट माइनस नंबर ऑफ पिल्स बैलेंस इन द बॉटल. आप उनकी बॉटल में वो नंबर ऑफ जो टैबलेट्स हैं वो काउंट करते हैं और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हो कि कितनी आपने इशू करी थी over number of pills which should have been taken by the patient into 100. This will be giving you the adherence formula. सो वायरल लोड मॉनिटरिंग जो पेशेंट्स का है एज पर द प्रोग्रामेटिक कंडीशंस में हम कब करते हैं, एआरटी शुरू होने के 6 महीने पे हम पहला वायरल लोड करते हैं और उसको फिर से हम वन अगेन हम 6 महीने के बाद फिर से रिपीट करते हैं, दैट मीन्स 12 मंथ्स पे. और उसके बाद वो वायरल लोड अगर टारगेट नॉट डिटेक्टेड आता है, अनडिटेक्टेबल आता है, तो हम पेशेंट का वायरल लोड एवरी ईयर रिपीट करते हैं. सो सिमिलरली जो हमारा CD4 काउंट है वो हम पेशेंट का बेस लाइन करते हैं और एआरटी शुरू होने के 6 महीने पे करते हैं और उसके बाद फिर से 12 मंथ्स पे करते हैं. और उसके बाद अगर CD4 350 से ऊपर आ रहा होता है तो हम पेशेंट का ओनली वायरोलॉजिकल मॉनिटरिंग कंटिन्यू करते हैं और CD4 मॉनिटरिंग हम स्टॉप कर देते हैं अगर उसका CD4 काउंट 350 से ऊपर 2 बार के इंटरवल 6 मंथ्स के इंटरवल पे 2 बार आ चुका हुआ है. तो अगर हमारा वायरल लोड मॉनिटरिंग जो शेड्यूल्ड मॉनिटरिंग है हमारे पास अगर टारगेट नॉट डिटेक्टेड या लेस देन 1000 कॉपीज आता है, तो हम पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए एडवाइस कर देते हैं. और अगर पेशेंट का वायरल लोड 1000 कॉपीज के ऊपर आ रहा होता है तो हम पेशेंट का स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग पैकेज उसको प्रोवाइड करते हैं फॉर सब्सिक्वेंट 3 मंथ्स. जो आने वाले 3 मंथ्स के लिए हम उसको स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं और मिनिमम 3 काउंसलिंग सेशंस के बाद हम उसका वायरल लोड फिर से रिपीट करते हैं. अगर हमारे स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन के बाद पेशेंट का वायरल लोड कम्स टू द अनडिटेक्टेबल और वायरल लोड लेस देन 1000 आता है, तो हम जो भी उसका ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन का ट्रीटमेंट होता है वो कंटिन्यू करने के लिए एडवाइस करते हैं. एंड इफ दैट वायरल लोड इज मोर देन 1000 हम पेशेंट का सेसअप रेफरल कर देते हैं सो दैट उसको फर्दर अगर चेंज ऑफ ट्रीटमेंट की नीड है तो वो टाइमली हो सके. तो इस केस में पेशेंट का जो रेफरल है वो ई रेफरल होता है, पेशेंट को खुद फिजिकली जाने की जरूरत नहीं होती है. विद इन 2 days ऑफ दैट रिपोर्ट उसका सेसअप रेफरल फॉर्म फिल किया जाता है फ्रॉम एआरटी सेंटर और सीओई को मार्क कर देते हैं फॉर फर्दर असेसमेंट. सो अगर वायरल लोड जो है अनडिटेक्टेबल आता है तो उसका बेनिफिट क्या है कि उसका जो पार्टनर को ट्रांसमिशन है वो दैट कैन बी ब्रॉट टू द दैट पेशेंट कैन देयर इज मिनिमल रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, जीरो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू द सेक्सुअल पार्टनर. एंड अगर किसी प्रेग्नेंट मदर का वायरल लोड इज अनडिटेक्टेबल है तो हम मदर को ये एडवाइस करते हैं कि देयर इज मिनिमल रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू द चाइल्ड इफ योर वायरल लोड इज अनडिटेक्टेबल. सो सप्रेस्ड वायरल लोड अगर पेशेंट के कुछ कॉपीज आ रही हैं वायरल कॉपीज जो भी टारगेट उसका है टू द लेस देन 1000 कॉपीज से अगर कुछ कॉपीज उसके ब्लड में मिल रही हैं, सो हम पेशेंट को एडवाइस करने के लिए ये बोलते हैं कि दैट सम वायरस इज रेप्लिकेटिंग, कुछ वायरस अभी रेप्लिकेशन फॉर्म में है, आपके एक्टिव फॉर्म में है. एंड दिस जिसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि आप टाइमली पिल्स नहीं ले रहे हो या फिर आप पिल्स मिस कर रहे हो. तो इससे इससे इसमें ऑल्दो जो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन है वो जीरो और नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू द पार्टनर रहेगा अगर पेशेंट के वायरल कॉपीज आर लेस देन 1000. बट इफ द कॉपीज आर मोर देन 1000 तो इस केस में सिग्निफिकेंट रिस्क रहता है ट्रांसमिशन का, वायरस का ट्रांसमिशन का from one partner to the other partner. And this also indicates अगर किसी का viral load is more than 1000 that there is increasing risk of falling ill or passing virus to the partner, or if mother has having more than 1000 copies, high risk of transmission from mother to the child.
सो अल्टीमेट गोल क्या है हमारा जो जब भी हम HIV का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, दैट वी शुड बी एबल टू अचीव sustained and undetectable viral load. So that is the ultimate aim of antiretroviral therapy program which is being given to the patient, so that उनका जो ये attainment है viral load का undetectable, वो अगर एक बार अचीव हुआ है तो that should be sustained. वो subsequently भी हमारा एम है कि उनका जो सब्सिक्वेंट भी हम उनका वायरल लोड टेस्ट मॉनिटरिंग करें तो वो अनडिटेक्टेबल ही आए. तो उसके लिए जो हमें एफर्ट करना है फॉर स्टेप अप एडहेरेंस, दैट शुड बी डन एट ईच विजिट, सो दैट हमारा जो अल्टीमेट गोल है प्रोग्राम के सक्सेस के लिए वो हम अचीव कर पाएं. And this not only will reduce the transmission of the disease, but will also improve the overall clinical health of the person who is living with HIV. So importantly, अगर हमारे पास we have viral load monitoring as we are doing in our centers, we can actually look for a patient centric differentiated care. So इसका मतलब क्या है कि आई मीन अगर हमारे पास वी नो कि हमारे पास हमारे सेंटर में अगर 100 पेशेंट्स हैं, उसमें से 90 पेशेंट्स आर वायरली सप्रेस्ड और 10% जो हैं जिनका वायरल लोड हाई है, तो दे आर द वंस जिनको हमें फोकस करना है, जिनको हमें जो भी उनके फैक्टर्स हैं जिनके कारण वो मेडिसिन ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, तो उनको एड्रेस करना है, हमें उनको एक पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच प्रोवाइड करना है, सो दैट अगर हम हमारा जो एम है कि जो 10% हमारे सेंटर्स में अनसप्रेस चल रहे हैं, वायरोलॉजिकल फेलियर के साथ चल रहे हैं, हम उनको भी अनडिटेक्टेबल वायरल लोड के साथ जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं उनके साथ उनको लेके आए. तो पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच या उनको प्रोवाइड करें सो दैट हम उनको उनके फैक्टर्स के लिए एड्रेस कर सकें और जो भी रीजंस हैं उसके लिए हम उनको केटर करें. ये आपका सेशन पहले भी हो चुका हुआ है कि पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच कैसे करना है व्हेन जब हम पेशेंट्स का एआरटी शुरू करते हैं, और क्या क्या पैकेजेस में इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ट्रायाजिंग कर सकते हैं, सो दैट हमें वी कैन गेट टू नो कि कौन से हमारे इंडिविजुअल्स हैं जिनको हमें फोकस्ड करने की ज़रूरत है. इसके इम्पॉर्टेंटली हमें ये ध्यान में रखना है, जब भी हम पेशेंट का इनिशियल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, इनिशियल जब शुरू हुआ होता है ट्रीटमेंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, वो पैकेज ए सर्विसेज के अंडर रहता है, जिसमें ऑल न्यूली पेशेंट्स जो भी रजिस्टर हुए हैं हमारे पास एआरटी केयर के लिए टिल द टाइम जब तक हमारे पास उनका फर्स्ट वायरल लोड का रिजल्ट नहीं है, वो हमारे पास पैकेज ए सर्विसेज में है. उसमें भी डिफ्रेंशिएट कर दिया कि जिनका CD4 इज लेस देन 200 और जिनका CD4 इज अबव 200, तो दो पैकेज ए और पैकेज ए प्लस सर्विसेज में इनको भी डिफ्रेंशिएट फर्दर हो गया. ए इज वन जिनको भी न्यूली इनिशिएट हुए हैं, और ए प्लस इज वन जो न्यूली इनिशिएट तो हुए ही हैं बट दे हैव एडवांस डिजीज, दैट मीन्स उनका CD4 काउंट इज लेस देन 200 और ऐसी कोई भी इलनेस उनमें है विच इज इन स्टेज 3 और स्टेज 4 कंडीशन ऑफ द WHO. दैट दोज पीपल विल बी गिवन पैकेज ए प्लस सर्विसेज, जिसमें हमें इनको एडवांस डिजीज पैकेज सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. तो मैं ये आपको थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में भी बताऊंगी. अब जो भी इनिशिएट हुए पेशेंट्स उनका हम वायरल लोड करेंगे 6 मंथ्स पे आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी. जब हमने वायरल लोड मॉनिटरिंग करा 6 मंथ्स पे, एंड इफ दैट रिपोर्ट इज वायरल लोड अनडिटेक्टेबल और वायरल सप्रेशन इज देयर, तो हमारा ये पेशेंट पैकेज बी सर्विसेज के लिए कैटेगराइज हो जाएगा, जिसमें हम उनको स्टेबल पेशेंट की कैटेगरी में कह सकते हैं, बिकॉज दे हैव वायरल. स्टेबल पेशेंट्स कौन से होते हैं? जिनका वायरल सप्रेशन इज देयर, those people who don't have any active opportunistic infection, they have immunological improvement, CD4 count में improvement है, उनको कोई और OI नहीं है, कोई भी और infection नहीं है, और उनका adherence जो है वो more than 95% है. तो these people are the people who are categorized as package people who comes into the package B services.
So they are considered as stable patients. Then comes the package C services, जिन patients का viral suppression अभी achieve नहीं हुआ है, जो कि unstable हैं, those people who are missing medicines, or those people who have come back after being LFUs, or those who require a patient centric approach because they have certain illness which is not there in everyone, but supposedly some patient is having renal impairment, hepatic illness, or some other infection which is only with that particular patient, and that person should be under the services of package C services. पैकेज सी सर्विसेज में हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन भी आती हैं, एंड पैकेज सी सर्विसेज में हमारे पास जो बच्चे हैं वो भी आते हैं. सो चाहे पेशेंट पैकेज ए सर्विसेज में है, बी सर्विसेज में है, सी सर्विसेज में है, आपको हमेशा पेशेंट को यही बताना है, वंस एआरटी इज इनिशिएटेड दिस इज गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन. इट इज नॉट दैट आप पैकेज बी में आ गए तो अब आपका मेडिसिन बंद हो सकता है. सो वंस जब भी किसी का एआरटी शुरू हो गया है तो वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहेगा, सो दैट हमारा एम है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो स्टेबल कैटेगरी में मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे पास आ सकें. सो जब भी हमने न्यूली इनिशिएट किया पेशेंट को, न्यूली रजिस्टर्ड जो पेशेंट है, सो वो हमारा पैकेज ए सर्विसेज में आया. तो पैकेज ए में जब हम एआरटी शुरू करते हैं तो आप एआरटी काउंसलर्स जो हैं उनका प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग करते हैं. उस समय उनका एड्रेस वेरिफिकेशन, उनका केयर गिवर कौन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और उनके काउंसलिंग के टाइम पे उनका 4S असेसमेंट करते हैं. और अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है तो उनका रैपिड एआरटी इनिशिएट किया जाता है. और ऐसे रैपिड एआरटी इनिशिएशन जैसे हो जाता है उसके बाद जैसे ही पेशेंट स्टेबल होता है उसको टीबी प्रिवेंटिव मेडिसिन दी जाती हैं, कोट्रामोक्साजोल प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है अगर CD4 350 से कम है, और उसको एडहेरेंस के लिए काउंसिल किया जाता है. एंड देन उसका वायरल लोड टेस्टिंग जो है वो 6 महीने पे करते हैं. और इसके अलावा हम पेशेंट को के पार्टनर टेस्टिंग के लिए भी उसको बताते हैं, और पेशेंट सेंट्रिक पैकेज देते हैं अगर कोई स्पेशल पॉपुलेशन में है, की पॉपुलेशन में है, एडोलेसेंट है, चिल्ड्रन है, या प्रेग्नेंट वुमेन है. और पैकेज ए प्लस सर्विसेज में हमारे पास पेशेंट्स एडवांस डिजीज मैनेजमेंट में है, तो जिनका CD4 लेस देन 200 है, या फिर उनको स्टेज 3 या स्टेज 4 इलनेस है, तो उनको उनका एडवांस डिजीज मैनेजमेंट के साथ साथ उनको एनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग भी की जाती है, सो दैट वी कैन अचीव द वायरल सप्रेशन एज सून एज पॉसिबल. सो पैकेज बी सर्विसेज में हमारा डिफरेंशिएटेड केयर मॉडल में अगर जो पेशेंट स्टेबल हो चुके हैं वी कैन गिव देम मल्टी मंथ डिस्पेंसेशन ऑल्सो. और ऐसे पेशेंट जो स्टेबल हो चुके हैं वी कैन ऑल्सो डिसेंट्रलाइज देम टू द लिंक्ड एआरटी सेंटर्स, जो जहाँ पे भी पेशेंट प्रेफर करता है जाना, क्योंकि सो दैट उनका ट्रेवल टाइम रिड्यूस हो सके, एंड दे कैन गेट द एआरटी as near to their home center as they can. एंड उनका जो वायरल लोड मॉनिटरिंग है दिस इज बीइंग डन as per the recommendations, and at a 1 year interval if they are maintaining viral suppression. So in package C services जो है viral load testing, and we need to provide them enhanced adherence counseling. और अगर step up adherence counseling session के 3 सेशंस के बाद भी पेशेंट का वायरल लोड हाई आता है तो हमें ई रेफरल करना होता है ऐसे पेशेंट्स का, सो दैट हम टाइमली उनका एआरटी स्विच कर पाएँ. सो पैकेज सी सर्विसेज में स्पेशल पॉपुलेशंस भी आती हैं, की पॉपुलेशन, एडोलेसेंट, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, जिनको पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच देने की ज़रूरत होती है, या फिर हमें केस बेस्ड मैनेजमेंट अप्रोच भी करना पड़ता है. तो ऐसे जो पेशेंट्स अपना एडहेरेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, मिस हो रहे हैं, बार बार LFUs हो रहे हैं, तो उनके लिए हमें मंथली फ़ोन कॉलिंग भी करनी पड़ती है, रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं. उनके जो पेयर ग्रुप के पेयर सपोर्ट के लोग हैं उनको भी हमें बताना पड़ता है कि उनको जो भी पेशेंट है उसको सेंटर में विजिट करने के लिए कहने के लिए, सो दैट उनका प्रॉपरली एडहेरेंस काउंसलिंग हो सके. और कई बार हमें हमारे आउटरीच वर्कर्स को उनका होम विजिट भी करना पड़ सकता है, सो दैट जो भी कारण से पेशेंट नहीं आ पा रहा है उसके लिए एड्रेस किया जाए और उनको अपने सर्विसेज के साथ दोबारा से लिंक किया जाए.
सो मैनेजमेंट अगर पेशेंट का अगर अनसप्रेस्ड वायरल लोड चल रहा है, तो जैसे मैं बताया कि स्टेप अप काउंसलिंग करना पड़ेगा, और मिनिमम 3 सेशंस के बाद हम पेशेंट्स का वायरल लोड रिपीट करते हैं, और अगर वायरल लोड हाई होता है तो हम ई रेफरल भेजते हैं सेसप्स को, सो दैट ART स्विच के लिए डिसाइड हो सके। और अगर पेशेंट मिस कर रहा होता है तो उसकी मिस्ड अपॉइंटमेंट के लिए उसका ट्रैकिंग करवाते हैं, ट्रेसिंग करवाते हैं, सो दैट उसको दोबारा से प्रोग्राम के साथ लिंक कर सकें। और एडवांस डिजीज मैनेजमेंट करना पड़ता है अगर उनका जो CD4 इज फॉलिंग एंड वायरोलॉजिकल सप्रेशन इज नॉट देयर। सो एक कलर कोडिंग भी आप कर सकते हैं अपने वाइट कार्ड्स का, नैको वाइट कार्ड्स का। जो पेशेंट जो स्टेबल चल रहे होते हैं उनको आप ग्रीन कोडिंग कर सकते हैं। जो पेशेंट आपके इनिशियली इनिशिएटेड आते हैं, जो ए कैटेगरी में होते हैं, तो उनको आप येलो कोडिंग कर सकते हैं, और उस पर मैंशन कर सकते हो कि येलो कोडिंग में ए है या A+ है, डिपेंडिंग अपॉन CD4 लेस देन 200 है, या फिर साथ में कोई WHO स्टेज 3-4 इलनेस है कि नहीं है। और पैकेज C में आप उनको रेड मार्किंग कर सकते हो कार्ड्स को, सो दैट ये आपको एक तरह से आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है कि एट द लेवल ऑफ जब आप पेशेंट विजिट रजिस्टर में एंट्री करवा रहे होते हैं केयर कोऑर्डिनेटर, सो दैट वहाँ से पता चल जाए कि ये पेशेंट को स्टेबल पेशेंट है तो ये ग्रीन वाला पेशेंट जो है वो स्टेबल है। जो रेड वाले पेशेंट्स आ रहे हैं इनको उनको पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच की नीड है। जो पेशेंट येलो स्टिकर्स में आ रहे हैं, दैट मीन्स कि दे आर द न्यूली इनिशिएटेड वंस। इनके इनका इनका फर्दर जो जो इनिशियल 6 मंथ्स हैं, दे आर वेरी क्रूशियल। हमें उनको रिमाइंडर्स देना है, हमें उनको काउंसलिंग के लिए बताना है, हमें उनको इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए असेस करना है, हमें उनको कोई और OIs के लिए असेस करना है एट द व्हेन दे आर बीइंग इनिशिएटेड इन द न्यूली पीरियड। सो अगर हमारे पास पेशेंट्स का अनसप्रेस्ड वायरल लोड आ रहा है तो हम उन्हें कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले जो वायरल लोड की रिपोर्ट्स आती हैं हमारी, तो वो एक उसका एक लिस्ट जनरेट करते हैं। तो डेटा मैनेजर से आप उन पेशेंट्स का जिनका वायरल लोड इज़ हाई अनसप्रेस्ड चल रहा है उनका एक लिस्ट जनरेट किया जाए, और उसके बेसिस पे जिनका हाई आ रहा होता है उन पेशेंट्स को स्पेसिफिक कॉलिंग करके उनसे उनको उनका नेक्स्ट विजिट के बारे में पूछा जाए कि कब विजिट कर रहे हैं, और उनको काउंसलर्स को दे शुड बी प्रोवाइडिंग इंटेंसिव सपोर्ट, सो दैट उनको असेसमेंट करा जाए कि वो ट्रीटमेंट एडहेरेंस पे हैं कि नहीं है, वो मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सो इसके लिए सबसे पहले वो आफ्टर दैट लिस्ट इज जनरेटेड, और उसके बाद कॉलिंग करके पेशेंट को एज सून एज पॉसिबल ART सेंटर में विजिट करें, और उसमें आके असेसमेंट करें कि क्या कारण से पेशेंट ने मेडिसिन छोड़ी है। कोई और इन्फेक्शन हो चुका हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, और पेशेंट क्यों रेगुलर मेडिसिन नहीं खा पा रहा है। तो वो असेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम ऑफ 3 सेशंस करने के बाद, जो कि 15 डेज या 1 मंथ के इंटरवल पे एज पेशेंट का असेसमेंट होने के बाद ही आप उसका बता सकते हैं कि हाँ 15 डेज का रिपीट सेशन होना चाहिए, और या 1 मंथ का, जैसे ही एज पर द रिक्वायरमेंट। सो आप उसका स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन काउंसलर्स प्लान करते हैं, एंड प्रेफर करें कि आपके जो स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन है वो सेम काउंसलर प्रोवाइड करे पेशेंट को जिसने इनिशियल सेशन दिया है, फर्स्ट सेशन दिया है, सो दैट जो फर्स्ट सेशन में उसने फैक्टर्स असेस करे हैं वो सेकेंड सेशन में और सब्सिक्वेंटली थर्ड सेशन में एड्रेस कर सकें, और पेशेंट को हम दोबारा से प्रॉपरली लिंक कर सकें। एंड इनका स्पेशल विजिट्स करवाने की नीड नहीं है। आप पेशेंट का जो रिविजिट का डेट है उसके साथ भी ये स्पेशल काउंसलिंग सेशंस आप उन दिनों में प्लान कर सकते हैं। सपोजिटली पेशेंट ने 5th ऑफ जनवरी को आना है, तो आप उसका जो ये स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन है तो आप उसके अकॉर्डिंगली सेम डे पे प्लान कर सकते हैं। और अगर सपोजिटली पेशेंट अपने रिविजिट पे आने के लिए अभी अभी पॉसिबल नहीं है समहाउ, तो ये सेशंस आप ओवर फोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं बाय द काउंसलर। और बट इसको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर फॉर्म भी है जिसमें आप जिस दिन कॉलिंग कर रहे हैं और अब किससे बात हुई है और क्या क्या आपने उसको बताया है, और फर्दर उसने क्या उसका फीडबैक है, तो वो सारा एक एक रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी आप उसमें एंटर करके एंड फर्दर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं जब आपकी तीनों सेशंस कंप्लीट हो जाएं। सो
आपको जब आप स्टेप अप काउंसलिंग सेशन कर रहे होते हैं तो आपको एक और भी जिसका ध्यान रखना है कि आप उसके पेशेंट से ये उसके पार्टनर टेस्टिंग, स्पाउस टेस्टिंग के बारे में ज़रूर बात करें। और अगर पेशेंट के बच्चों का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है तो उसके बारे में भी बात करें और उनको फैसिलिटेट करें कि अगर पेरेंट्स पॉजिटिव हैं तो बच्चों का टेस्ट करवाने की नीड है एज पर द आपका असेसमेंट के बाद। और जो रिपीट वायरल लोड टेस्टिंग करना है पेशेंट का आफ्टर वायरोलॉजिकल फर्स्ट वायरल लोड हाई आने के बाद, तो वो आपको एटलीस्ट 3 सेशंस होने के बाद ही आपको प्लान करना है। और आपको you should be making all those efforts so that पेशेंट का जो भी लैब इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड हैं जो कि स्टेप अप काउंसलिंग सेशन के टाइम पे पेशेंट अगर विजिट कर रहे हैं तो वो भी टाइमली हो सकें और उनको हो सकें। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास लैब इन्वेस्टिगेशंस नहीं अवेलेबल हैं और पेशेंट को सेसअप ओपिनियन की नीड है तो उसकी वेट करते रहें। यू कैन सेंड द रेफरल और फर्दर बट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी द रीजन कि आप उसको डिलेड ई रेफरल करें पेशेंट का। और जिनका भी सेसअप रेफरल के बाद जिनका भी स्विच डिसाइड हो आफ्टर असेसमेंट तो वो टाइमली होना ज़रूरी है। सो इम्पॉर्टेंटली जिनका भी पेशेंट्स का वायरल लोड मोर देन 1000 कॉपीज आया है तो जो ई रेफरल है सेसअप रेफरल है वो विद इन 2 days ऑफ रिसीविंग दैट वायरल लोड रिपोर्ट होना चाहिए एंड वी शुड नॉट बी डिलेइंग इन द ई रेफरल। एंड जो सेसअप जहाँ 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 असेसमेंट हो रहा है तो दे शुड बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फीडबैक विद इन अ 1 week ऑफ द रेफरल। तो विद इन अ 1 week आपको फीडबैक मिल जाए सो दैट आप भी फर्दर एआरटी सेंटर्स भी फर्दर डिसाइड कर पाएं कि हाँ ये सेम मेडिसिन कंटिन्यू होना है कि एआरटी स्विच का नीड है पेशेंट को। सो क्या क्या चीज जिससे बताया कि 3 सेशंस इंपॉर्टेंट हैं बिफोर डिसाइडिंग फॉर कि हाँ इसको पेशेंट को रिपीट वायरल लोड की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। और ये भी बताया कि आपको जो काउंसलिंग सेशन है वो सेम काउंसलर से करना बेटर रहे हमेशा ही बिकॉज उस सेशन उनका असेसमेंट एक काउंसलर ने करा है तो वो फर्दर फीडबैक और पेशेंट का भी रैपो एक बिल्डिंग हो चुका हुआ है एंड दैट पेशेंट विल आल्सो बी कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग द इश्यूज जो आपने फर्स्ट सेशन में उसके साथ डिस्कस किए। सब्सिक्वेंटली उनका उनका क्या फर्दर सॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए सेकेंड एंड थर्ड सेशन में आपका सेम सेम काउंसलर के साथ बेटर ही पेशेंट का रिस्पॉन्स रहेगा। एंड आप इंश्योर करें कि जो काउंसलिंग सेशंस आपके जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो इन दैट फॉर्मेट। तो जो सेशन 1 किया जाता है उसमें स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन में सबसे पहले ये असेस करना कि उसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट या सेकेंड लाइन जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका एडहेरेंस कैसा है, उसको कितना कितना रेगुलरली पेशेंट ले रहा है, कितना टाइम डिले है, कितना मिसिंग हो रहा है उन मेडिसिन का। तो ये असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप पेशेंट को फर्स्ट सेशन में उसका जो वायरल लोड रिजल्ट आया है उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। supposedly पेशेंट का वायरल लोड इज मे बी 20,000 कॉपीज तो ये बताना कि ये वायरोलॉजिकल फेलियर है इसके बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है। और उसको ये बताना कि मीन दैट दिस पेशेंट इज फार फ्रॉम द अभी अभी आपको टारगेट नॉट डिटेक्टेड तक आने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रहे कि आप क्यों नहीं ये वाला रिजल्ट लेके आए। तो इसके लिए वायरोलॉजिकल जो टेस्ट आपके पास जो रिपोर्ट आई है पेशेंट को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। और आप फर्स्ट सेशन में ये असेस करें कि उसको एआरटी की एडहेरेंस के बारे में जो आपने इनिशियली जो आप अगर पेशेंट का न्यूली इनिशिएटेड मान लीजिए पेशेंट है 6 महीने या 7 महीने पहले उसकी मेडिसिन शुरू हुई है तो उसको अभी तक एआरटी एडहेरेंस के बारे में क्या क्या समझ आया था, उसको एचआईवी एआरटी के बारे में में जो आपने बताया कि किस टाइम पे मेडिसिन लेनी है वो रेगुलरली ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा, उसको उसको वायरल लोड के बारे में आपने अगर पहले बताया है तो उसने उसके बारे में क्या समझा है और अब रिजल्ट आने के बाद उसको क्या उसमें डिफरेंस है। तो ये चीज़ों का असेसमेंट करना ज़रूरी है।
उसको ये बताना कि व्हाट ऑल बेनिफिट्स विल बी देयर, अगर वो मेडिसिन को एडहेयर करेगा तो उसको और इन्फेक्शंस नहीं होंगी, अगर मेडिसिन को एडहेयर करेगा तो दिस वायरल सप्रेशन कैन बी अचीव्ड, और अगर सस्टेन्ड वायरल सप्रेशन रहेगा तो उसको और इन्फेक्शन से ना केवल और इन्फेक्शन से बचाएगा, उसका ट्रांसमिशन भी रिड्यूस कर सकता है पार्टनर को। तो ये भी एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, और उसको मोटिवेट करना टू स्टे हेल्दी, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, डाइटरी चीज़ों के लिए, ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। और जो भी उसके बैरियर्स आ रहे हैं कि अगर वो प्रॉपरली टाइमिंग्स क्यों नहीं ले पा रहा है, कुछ साइड इफेक्ट्स के कारण मेडिसिन नहीं ले पा रहा है, कुछ उसको फेयर है मेडिसिन का, या कुछ कई बार पेशेंट्स को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो दे स्टार्ट फीलिंग लो बिकॉज ऑफ दिस इलनेस। सो उनका चेक करना वेदर दे रिक्वायर एडिशनल हेल्प फ्रॉम द साइकेट्रिस्ट और फ्रॉम द काउंसलर, तो उसका उसका असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज समटाइम्स उन इश्यूज के कारण ही पेशेंट्स रेगुलरली मेडिसिन नहीं ले पा रहे होते हैं। समटाइम्स क्या होता है, उनकी जॉब्स और उनकी टाइमिंग्स ही ऐसे होती हैं विच इज़ नॉट अलाउइंग कि वो रेगुलर मेडिसिन ले पाएँ। समटाइम्स उनका नाइट शिफ्ट है या मॉर्निंग शिफ्ट है, तो उनको उस सारी चीज़ों का असेसमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन, स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन। और उसके अकॉर्डिंगली आफ्टर दैट असेसमेंट आप उनको एक एडहेरेंस प्लान बना के सजेस्ट कर सकते हैं, सो दैट उनको अपनी मेडिसिन लेने के लिए वो इजी हो सके। सपोजिटली पेशेंट का नाइट शिफ्ट है और आपको टीएलडी उनको नाइट में एडवाइस किया हुआ था, बट वो नाइट शिफ्ट के कारण वो मेडिसिन उस टाइम पे ले ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए आप उनको ट्रीटमेंट प्लान बना के दीजिए कि टीएलडी का तो आप इसको डे टाइम पे शिफ्ट कर सकते हो, इस टाइम पे वट एवर टाइम जो पेशेंट को मोस्ट कंफर्टेबल टाइम है उस टाइम पे शिफ्ट करके उसको रेगुलरली उसी टाइम पे लेना शुरू कर दे। सो आपको एक एक ट्रीटमेंट प्लान बना के उनको देना है। अगर वो पेशेंट कोई और मेडिसिन साथ में खा रहा है तो उनका उनका डोजिंग, उनका सेपरेशन कैसे करना है, वो आपको एक उसको चार्ट बना के उसको देना है, सो दैट उसको ईजी हो सके अपनी मेडिसिन का लेना। और साइमल्टेनियसली आप ये भी इंपॉर्टेंटली असेस करें कि पेशेंट का केयर गिवर कौन है, सपोर्ट सिस्टम कैसा है, कोई रिमाइंडर्स कैसे सेटअप हो सकते हैं सो दैट पेशेंट टाइमली मेडिसिन ले सके, पेशेंट कैसे डायरी मेंटेन कर सकता है रिमाइंडर्स के लिए, पेशेंट अपना फ़ोन में रिमाइंडर सेट कर सकता है। सो कुछ कुछ चीज़ें आपको उसका जो ऐसी ये असेसमेंट है वो सेशन 1 के असेसमेंट का पार्ट रहेंगे। और उसको ये बताना कि आपका जो अभी नेक्स्ट विजिट है इस दिन पे आना है, और आपका जो सब्सिक्वेंट वायरल लोड टेस्ट है हम इस समय दोबारा से फिर से करके देखेंगे, आप पहले मेडिसिन अच्छे से लेना शुरू करें। सो सेशन 2 में जो कि आपका आइडियली 15 डेज़ या 1 मंथ में हो जाना चाहिए, उसमें आप जो आपने सेशन 1 में उसको ट्रीटमेंट प्लान बना के दिया हुआ है, वो आप रिव्यू करते हो, और अगर सपोज़िटली आपके जो रिव्यू प्लान को पेशेंट एडहेयर करता है, तो आप उसको एनकरेज करिए, उसको एप्रिशिएट करिए कि हाँ, आपने ये फॉलो करा है, तो इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ गुड रिजल्ट इन योर सब्सिक्वेंट टेस्ट एज़ वेल। और सपोजिटली आपको लगता है कि अभी भी कुछ इश्यूज हैं, अभी भी गैप्स हैं जो आपने पहले सेशन में बताया, पेशेंट नहीं उसको फॉलो कर पा रहा है, तो आप अपने जो प्लान को थोड़ा मॉडिफाई करें, थोड़ा रिवाइज करें, और जो कुछ इश्यूज आपको लगता है अभी और सॉल्व करने की ज़रूरत है तो वो उसमें ऐड ऑन करें, और अपना स्ट्रैटेजाइज करें कि पेशेंट कैसे मेडिसिन टाइमली ले सके, और जो भी हिंड्रेंसेज आ रही हैं उसको वो टारगेट अचीव करने के लिए उसको एड्रेस करें। और उसको फिर से आप उसको सेकंड सेशन में रिमाइंडर देना है कि हाँ, आपको अभी नेक्स्ट विजिट आपका इस टाइम पे है, सो एंड सो डे पे है, तो आपको टाइमली अपनी पिल पिकअप के लिए आना है। सो जो थर्ड सेशन में आप उसका जो आपने फर्स्ट एंड सेकंड सेशन में आपने पेशेंट को बताया होता है, दैट इज ऑल बीइंग रिव्यूड। आप उसको, अगर वो एडहेरेंस मेंटेन करता है तो उसको अप्रिशिएट करिए दैट कि आपने ओवर लास्ट 2 months यू हैव मेंटेन्ड एडहेरेंस, यू हैव एक्चुअली इम्प्रूव्ड योर टाइमिंग्स ऑफ टेकिंग मेडिकेशंस। सो उसके लिए उसको अप्रिशिएट करें, उसको एनकरेज करें। और सपोजिटली अगर आपको लगता है कि थर्ड सेशन के टाइम पे भी अभी भी इश्यूज आ रहे हैं, अभी भी गैप्स आ रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि आपको थर्ड सेशन पे भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत हो। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट के
जो भी आपने इश्यूज आइडेंटिफाई करे पेशेंट ने, उनको सॉल्व करने के लिए आपने जो भी उसको प्लान बना के दिया उसको एडहेयर कराए, तो यू गो फॉर अ रिपीट टेस्ट आफ्टर थर्ड सेशन ऑफ द स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग। एंड अगर लगता है कि अभी अभी भी पेशेंट में गैप्स हैं, तो यू मे बी आपको 1 or 2 सेशंस मोर करने पड़े बिफोर गोइंग फॉर अ रिपीट वायरल लोड टेस्ट इन सच केसेस। सो अगर आपका जो आफ्टर स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन के बाद अगर वायरल लोड कम्स आउट टू बी लेस देन 1000 कॉपीज और या 1000 तक आता है, तो आप पेशेंट को अप्रिशिएट करें, एनकरेज करें दैट देखिए आपने 20,000 से अब 1000 कॉपीज तक लेके आए हैं, सो इफ़ यू विल कंटिन्यू विद सिमिलर ट्रीटमेंट प्लान और एडहेरेंस के साथ मेंटेन करेंगे, तो लाइकली है कि आपका जो सब्सिक्वेंट टेस्ट होगा वो वायरल सप्रेशन पूरा अचीव हो जाएगा। सो आप अपना ऐसे ही टाइमली रेगुलर मेडिसिन लेते रहें। और सेम टाइम पे जो अगर आपने उनको कुछ और डिजीज़ के लिए मेडिसिन के बारे में गैप्स बताया होता है, तो आप उनको बताएं कि हाँ, इनका जो टाइमिंग्स है आप ऐसे ही रखें एंड कंटिन्यू विद योर गुड एडहेरेंस, एंड लाइकली है कि आपका वायरल सप्रेशन अचीव हो जाएगा सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से। बट अगर उसका आफ्टर स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन के बाद भी जो उसका वायरल लोड है इट कम्स आउट टू बी मोर देन 1000, तो आपको डिले नहीं करना है, आपको ऐसे पेशेंट को ई रेफरल विद इन 2 days ऑफ दैट वायरल लोड रिजल्ट भेजना है, सो दैट उसका जो रिव्यू है वो सैसअप पैनल से हो सके। और सैसअप की रिकमेंडेशंस जो हैं आप दैट शुड आल्सो बी रीच्ड, आई मीन प्रोवाइडेड टू यू विद इन 1 week ऑफ योर रेफरल, वेदर पेशेंट को एआरटी स्विच की नीड है कि अभी नहीं नीड है। सो इस इन चीज़ों में आफ्टर सेकेंड सेशन वायरल लोड टेस्ट में इसमें डिले नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी डोंट वांट पेशेंट टू कंटिन्यू ऑन द फेलिंग रेजिमेंट फॉर अ longer time, because continuation of the failing regimen for a very very long time will result into the emergence of resistant mutants in the blood, which we don't want. सो एक ये चेकलिस्ट है विच इज़ देयर इन द गाइडलाइंस एज वेल, तो विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू काउंसलर्स को स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन जब जब कर रहे होते हैं, ताकि कुछ मिस ना हो। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्दर ये स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन 1 में क्या क्या चीज़ें को नोट करना है और या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। सो इम्पॉर्टेंटली आप स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन में देखिए कि एआरटी नंबर क्या है पेशेंट का, एआरटी रजीम कौन सा चल रहा है, डेट ऑफ एआरटी इनिशिएशन क्या है, वायरल लोड टेस्ट का डेट क्या था और उसका रिजल्ट क्या है, और नेक्स्ट वायरल लोड कब ड्यू है। तो ये चीज़ें सबसे पहले नोट होती हैं, और उसके बाद काउंसलर कौन पेशेंट को स्टेप अप एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और एआरटी एडहेरेंस लास्ट 3 मंथ्स में पेशेंट की क्या थी, तो वो यहाँ पे नोट की जाती है। तो उसके बाद सेशन 1 में असेसमेंट होता है कि अगर पेशेंट को एडिक्वेट नॉलेज है अबाउट एआरटी एडहेरेंस के बारे में कि नहीं है, और उसका क्या फैक्टर्स हैं कि वो रिस्क कैटेगरी में आ सकता है पुअर एडहेरेंस के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो वो आप येस और नो में मार्क करते हैं। सपोजिटली पेशेंट को नॉलेज है एडहेरेंस के बारे में, तो यू विल बी राइटिंग येस। हाँ, अगर कुछ आपको लगता है कि फैक्टर है पुअर एडहेरेंस का, सपोजिटली पेशेंट एक्टिव ड्रग यूजर है, सपोजिटली पेशेंट को और कोई इन्फेक्शन है, सपोजिटली पेशेंट को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो the patient has some risk factor of being having a poor adherence, because अगर मल्टीपल मेडिसिन चल रही हैं या उसका कुछ और ट्रीटमेंट चल रहा है, तो लाइकली है पेशेंट पुअर एडहेरेंस में आ सकता है। तो आप यहाँ पे अपना कमेंट डाल सकते हो कि हाँ, पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, पेशेंट को एचसीवी को इन्फेक्शन है, पेशेंट ड्रग अब्यूजर है। तो आप ऐसा अपना कमेंट्स के लिए अपना आप ये दिस इज ऑल्सो अ रिमाइंडर फॉर दैट पर्टिकुलर काउंसलर जो काउंसिल कर रहा है। देन यू विल बी नोटिंग कि हाँ, वायरल लोड रिजल्ट क्या है पेशेंट का, और पेशेंट एआरटी ड्रग डोजेजेस रेगुलर ले रहा है, नंबर ऑफ पिल्स कितनी उसको दिन में जाती हैं, और उसका टाइमिंग्स क्या है। तो वो ये चीज़ों को आप नोट करते हो और अपना कमेंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड उसका केयर गिवर कौन है, मदर है, फादर है, हस्बैंड है, वाइफ है, वट एवर। सो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसका फ़ोन नंबर। अब उसके बैरियर्स क्या रहे कि उसका जो वायरल लोड टेस्ट रिजल्ट है मोर देन 1000 कॉपीज़ आया है ना, तो उसका असेसमेंट करने के लिए ये बहुत अच्छा सा टेबल है, और आप इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही रीजंस होते हैं कि वो मेडिसिन ठीक से नहीं ले पा रहे होते हैं। सो जैसे कि
फर्स्ट में दिया हुआ है कि पेशेंट भूल गया मेडिसिन लेना, या उसको कोई 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 उसकी फॉल्स बिलीफ से, मिस से कि हाँ सपोजिटली मैंने मेडिसिन, कई बार जब इनिशियली शुरू करते हैं तो वो पेशेंट्स को होता है कि हम कैसे भी करके हम हमारा कोई क्योर हो जाए डिजीज, तो दे कीप ऑन ट्राइंग फॉर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज एज वेल, ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस एज वेल। सो वो सारी मिथ्स जो हैं वो उनको उनको क्लैरिफाई करना, उसके कारण उसका पोर एडहेरेंस रहा, तो वो आप यहाँ नोट करेंगे। उसको एआरटी की नॉलेज ही प्रॉपरली नहीं मिल पाया, एआरटी ट्रीटमेंट का प्रॉपर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया, या कुछ उसको साइड इफेक्ट्स थे, या कोई उसको इलनेस थी, या सब्सटेंस अब्यूज था, या पेशेंट वाज इन डिप्रेशन, पिल बर्डन ज़्यादा था, या कुछ ऐसे सोशल फंक्शंस थे, मैरिजेस थे। समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि हम फंक्शंस में गए हैं तो भूल गए हैं। कुछ भी रीज़न आपको जो भी इसमें से लगता है तो आप उसमें नोट डाउन करें। और पेशेंट को क्या लगता है, कई बार इनिशियली ट्रीटमेंट शुरू हुआ, 2-4 हफ्ते में उसको सिम्पटम्स में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ, साइंस में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ, तो उनको लगता है कि अब इम्प्रूवमेंट आ गया तो अब हम मेडिसिन छोड़ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि ऐसा कुछ असेसमेंट में आया है, तो दैट शुड बी असेस्ड। और कई बारी बच्चों के केसेस में क्या होता है, इनिशियली बच्चों को जब शुरू करी जाती है तो वो मेडिसिन इनिशियली, या उनको कुछ ऐसा बिहेवियर है या रिफ्यूज कर रहे हैं कि खाने से मना कर रहे हैं, टाइमिंग्स का इशू आ रहा है। कई बार पेशेंट्स को होता है कि वो बाहर जॉब्स में है या कहीं और पे हैं, तो किसी के सामने मेडिसिन लेंगे तो उनका जो स्टेटस है वो डिस्क्लोज हो जाएगा। सो ये चीज़ों का नोटिस में लाना इम्पॉर्टेंट है। या उनको फाइनेंशियल इश्यूज थे, ट्रैवल इश्यूज थे कि वो एआरटी सेंटर में पिल पिकअप के लिए नहीं आ सके, ड्रग्स उनके पास शॉर्ट पड़ गई, या उनको लगा कि एआरटी सेंटर में बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम था, या कुछ स्टिग्मा था, या कुछ भी फैक्टर्स आपको लगता है जो कि बैरियर्स रहा, वो आप फर्स्ट सेशन में असेसमेंट करते हैं, तो वो आप नोट करेंगे यहाँ पे। एंड देन आपने उसके लिए क्या इंटरवेंशन करा, क्या काउंसलिंग प्रोवाइड करा उसको। उसको आप सपोजिटली उसको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, आपने उसको कुछ लिंकेजेस सर्विसेज के बारे में बताया, होम कोई गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया, तो वो आप ज़रूर नोट करें। और उसको रिमाइंडर के लिए आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दिया, कि आपने उसको फ़ोन रिमाइंडर्स के लिए बताया, या एसएमएस के लिए बताया, या अलार्म्स, कैलेंडर्स, जो कई बार पेशेंट को कुछ टीवी शोज़ के साथ वो लिंक कर लेते हैं कि हाँ हम मेडिसिन इस टाइम पे ले सकते हैं, तो आपने क्या उसके लिए टूल्स डिज़ाइन करें टू इम्प्रूव द एडहेरेंस। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट आफ्टर डूइंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द काउंसलिंग। रिमेंबर हमारा जो गोल रहेगा कि दैट वी वांट हमारे पेशेंट का जो वायरल लोड है वो अनडिटेक्टेबल आए, वायरल सप्रेशन अचीव हो सके, और हमें पेशेंट का पेशेंट सेंट्रिक उसको एडहेरेंस प्लान बना के देना है। तो सेशन 2 में आप ट्राई करो कि आपका सेम काउंसलर ही उस सेकंड सेक्शन प्रोवाइड करे पेशेंट को, और उसमें आप फिर से असेसमेंट करोगे कि अगर पेशेंट का एडहेरेंस अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, और आप अप्रिशिएट ज़रूर करें अगर पेशेंट का एडहेरेंस अब फर्स्ट सेशन के बाद इम्प्रूव हुआ है, तो आप अपने कमेंट्स में भी वो चीज़ नोटिस में लाएं कि हाँ ये चीज़ आपने समझाया था पेशेंट को, नाउ इट हैज़ इम्प्रूव्ड। और अगर फिर भी कुछ बैरियर्स हैं तो आप फिर से नोट नोट करें, और ये आपको चेकलिस्ट जो है ये ज़रूर हेल्प करेगी, ताकि कुछ भी चीज़ आपसे मिस ना हो सके, और क्या इंटरवेंशंस करी और क्या टूल्स आपने पेशेंट को बताए टू इम्प्रूव द एडहेरेंस। एंड सिमिलरली इन थर्ड सेशन ऑल्सो आप ये चीज़ को रीअसेस करते हैं कि हाँ पेशेंट का एडहेरेंस इम्प्रूव हुआ आफ्टर प्रोवाइडिंग 2 सेशंस के नहीं हुआ, और आप क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करी, जो हमने स्ट्रैटेजीज सेशन 1 में या 2 में बताई हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है। सो इन चीज़ को फिर से आप नोटिस करते हैं। सो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पुअर एडहेरेंस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ पेशेंट्स बीइंग, इफ समबडी इज़ हैविंग ट्रीटमेंट फेलियर, वायरोलॉजिकल फेलियर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जो इसका है वो पुअर एडहेरेंस टू एंटी रिट्रोवायरल मेडिकेशन है। तो सिमिलरली एक स्टडी में जो जहाँ पे जीनोटिपिक रेजिस्टेंस टेस्टिंग हुआ 30 पेशेंट्स का, दोज पेशेंट्स जो थर्ड लाइन एआरटी पे फेल हो रहे थे, और कुछ पेशेंट सेकेंड लाइन एआरटी फेलियर के भी थे, तो उनको सैल्वेज ट्रीटमेंट के लिए असेसमेंट हो रहा था। तो एक स्टडी में उनको जब उनका जीनोटिपिक रेजिस्टेंस टेस्टिंग हुआ तो उसमें पाया गया कि उन पेशेंट्स में
सारी ही NRTIs वर्क कर रही हैं। तो दैट मीन्स कि जो भी ऑल NRTIs या फिर प्रोटीज इनहिबिटर्स या इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, तो ऑल ड्रग्स वर वर्किंग। तो इसका दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू नो दैट। इम्पॉर्टेंटली इसका इसका मीनिंग क्या निकलता है कि पेशेंट्स ने या तो वो मेडिसिन प्रॉपरली ली ही नहीं। सो एडहेरेंस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन कि they were not having those medicines. So all medicines were susceptible, all lines of treatment were susceptible, which was the result of that particular study. सो मॉनिटरिंग कैस्केड अगर इस स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं, तो आप देखें कि ये बार डायग्राम है और वाई एक्सिस में वायरल कॉपीज हैं। आप देखो कि वायरल लोड मोर देन 1000 जो था 15,000, जो वाई एक्सिस में नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। सो 15,000 पेशेंट्स जो थे दे वर हैविंग मोर देन 1000 कॉपीज ऑफ वायरल लोड। एंड उसमें से 70% पेशेंट जो थे उनका जो था दे वर रेफर्ड, और 30% दे वर नॉट रेफर्ड। एंड जो रेफर हुए उनका एनहांस एडहेरेंस काउंसलिंग सेशन उनको प्रोवाइड किया गया, और उनमें से 71% patients they were able to complete the enhanced adherence counseling session। और फॉलो अप जो टेस्टिंग हुआ वो 57% पेशेंट्स में हुआ। एंड फर्दर फॉलो अप जो वायरल लोड रिजल्ट मोर देन 1000 कॉपीज आया, वो 28% पेशेंट्स में आया। एंड 41% were referred to SASA for ART switch। तो there is a kind of a loss of the patients at each level, even for the unsuppressed viral load। So हमें इस चीज को improvement, we can do this improvement with the enhanced adherence counseling, and we should not be delaying the referral to SASA for further ART switch as and when it is required। सो रेडी रेकनर्स हैं ये, जो आप अपने पास रख सकते हैं while you are गोइंग फॉर द एनहांस्ड एडहेरेंस काउंसलिंग सेशंस। तो सेशन 1 में जैसे बताया कि असेस एडहेरेंस, एक्सप्लेन वायरल लोड रिजल्ट, और पेशेंट का नॉलेज क्या है ART, HIV और वायरल लोड के बारे में, क्या बैरियर्स हैं, पेशेंट को मोटिवेट करिए हेल्दी रहने के लिए और 100% एडहेरेंस मेंटेन करने के लिए। सो सिमिलरली सेशन 2, सेशन 3 में जो आप स्ट्रेटजीज बताते हैं पेशेंट को, उनका नोट करना और उनको फॉलो करना, उसके लिए पेशेंट को काउंसिल करें। And then you plan for next viral load, and after your at least 3 sessions of enhanced adherence counseling, and if that go for a repeat viral load after those 3 sessions itself। and अगर लगता है कि अभी 3 sessions के बाद भी पेशेंट का adherence नहीं अचीव हुआ है, तो plan for the session and go for a repeat viral load test afterwards। सो इम्पॉर्टेंटली U equal to U, I mean अगर पेशेंट का अनडिटेक्टेबल वायरल लोड आता है, तो दैट मीन्स दैट अमाउंट ऑफ HIV इन द ब्लड इज टू लो टू बी डिटेक्टेड ऑन द वायरल लोड टेस्ट। एंड अगर पेशेंट एडहेरेंट अपना मेडिसिन रेगुलरली खाता रहेगा, मेंटेन करेगा वायरल लोड अनडिटेक्टेबल, सो दैट पेशेंट विल नॉट बी एबल टू पास HIV to the partner through the sexual contact। and to remain undetectable, patient needs to continue medicine regularly every day, fixed time in the day, and get the viral load checked as required, as per the guidelines। and it is very important to maintain undetectable viral load so as to achieve the untransmittable state। So this is important। So this was all in this session। Thank you all, and if you have any question, please put it in the chat section or you can ask। Thank you so much, ma'am, for facilitating this session। किसी के कोई सवाल हो तो अभी पूछ सकते हैं। Ma'am, I don't think there are any questions। Right। I have a question। Deepak sir, can you please unmute? हेलो। Yes sir। Hello। Yes। हेलो मैम। मैम गुड आफ्टरनून। Good afternoon। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो मैम आपने लास्ट में बताया था U इज इक्वल टू U, मैम इसमें ना ऐसा हुआ था कि जैसे मेरे साथ एक बार क्लाइंट ने भी बताया था मुझे
उसने अपना वायरल लोड का टेस्ट करवाया। उसके बाद उसने किसी और सेंटर में जाके HIV का टेस्ट करवाया था, तो वहां पे उसका रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आया था। सो आप इम्पॉर्टेंटली पेशेंट अगर मेडिसिन पे है तो उसका यस जो मैम। एंटीबॉडी टेस्ट हमेशा ही रिएक्टिव में वो रहेगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। आपको ये चेक करना ज़रूरी है जो उसने किसी और सेंटर से टेस्ट करवाया है वो किस लैब से करवाया है, दिस इज़ वन। सेकेंडली जो जो रिपीट टेस्ट हुआ है वो उसमें क्या तीनों टेस्ट फिर से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, तो इसका ओके। इसका देखना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट कि सिंगल टेस्ट से आप HIV उसमें देखेंगे, आपको तीनों टेस्ट वो उसमें लगे हैं कि नहीं लगे उसका आप चेक करेंगे। और आपको पेशेंट को ये बताना ज़रूरी है कि आपका जो मेडिसिन है आप बंद नहीं करें, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। ये अनडिटेक्टेबल है, इट इज़ नॉट कि ये नेगेटिव हो गया रिपोर्ट। ओके मैम। और किसी को कोई सवाल करना है? Ma'am, I don't think there are any questions. Thank you so much for facilitating this session. Thank you so much, thank you. Thank you, ma'am. Okay. We can conclude this session now.